See, the fiscal deficit number has to be seen in a perspective. We are amidst this, corona pandemic, which is a very, very unusual. Anything which in the recent, memory, not in our generation, but then almost about 100 years back, at the time of the Spanish flu, 1919. It is that kind of a pandemic. The whole world and our country also is undergoing. During the last 10 months, this entire country was struck by this pandemic. We had an initial period lockdown, then slowly relaxation. Opening up of the... Then economy got impacted, the jobs got impacted, the daily life of people got disrupted, and then thereafter the economy started coming back to rails and also now showing the signs of recovery. During this period, the government came out with several packages. Atmanirbhar package. In fact, each of those packages could itself be termed as a mini budget. Now, in that backdrop, this particular budget had to come, and this budget could be seen not as an ordinary budget, but this budget is something which can, which can address these problems of the created by this pandemic situation, and then also that post-pandemic, what will be the kind of a economy that we want our country to take to, in which direction our country has to go. This is the budget, first budget of this decade. That's right. Also, we are coming close to our 75th year of our independence. Now, in this scenario, and particularly the whole, in the world, entire world, the economic order, the post-pandemic is going to be a new order. And in fact, the finance minister in her budget speech has said that in this, the Asia, and then also within Asia, the India will be, will have to play a very, very important role. So we have to prepare our country in that direction. Now, in this situation, if any such, and in these difficult times, who can spend the money? Who has the capacity to spend the money? It is the government. That's right. Because, to expect the private investments, investments alone will be sufficient, the answer is no. So therefore the government had to come in and spend money. Now this money is not that the money will get spent in any manner. It has to be a quality, spending of money. And that quality is basically, you have seen in the budget, on the health sector, more than 135% increase in the health. The capital expenditure, infrastructure, 34.5% increase over the last year's one. Similarly, that's the huge. Agriculture. Similarly, if you see the the financial, the sector, lots of reforms. The privatization of 2 banks and 1 general insurance company, IPO of LIC, the IDBI, the privatization, plus monetization of public assets, the land. So all those things, and in addition to that, the simplification of the tax structure, reduction in compliance burden, increase in the package. So all those things, and considering that this 9.5%, the fiscal deficit, because we had to spend money, our revenue resources were limited, but this is something. And then if you see the next year and then the year after that, we have also given the glide path, because it's not that the money, this kind of a money will get spent, this kind of a deficit will be continued for years. See, why this is happening is that in the next year we expect our revenue growth to happen, and whether be it the tax revenue, we are estimating the increase of 16.9%. Similarly, in the non-tax revenue, this investment is going to give us 1,75,000 crores. So now if you consider that, the expenditure level is almost going to be the level of this year, that is about more than 34 lakh crores. So if that, and with increased revenue collection,
we expect that our fiscal deficit will come to the range of 6.5, 6.8, which is quite realistic. इस साल का अगर देखें, जो अभी करंट ईयर है, जो कि मार्च में खत्म होने वाला है, इसमें भी देखिए कि हमारा बजट एस्टिमेट था करीब 30 लाख करोड़ का, लेकिन ये कोरोना पैंडेमिक से लड़ने के लिए और हमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है और हमें जो बाकी सब एरियाज में इन्वेस्टमेंट करना है, जो एक्सपेंडिचर करना है, इसलिए हमने अपना जो एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेट में 34 लाख बढ़ाया। इस कारण से फिस्कल डेफिसिट 9.5 किया, क्योंकि हमारा रेवेन्यू थोड़ा सा इम्पैक्टेड था। हालांकि पिछले 2-3 महीने में रेवेन्यू में सुधार आया है, जीएसटी में सुधार आया है, इनकम टैक्स में भी सुधार आया है, लेकिन इसके बावजूद भी 9.5 है। और ये सब जो एक्सपेंडिचर है, ये क्वालिटी एक्सपेंडिचर है। तो ऐसा हम लोग जब एक बार बजट में जब हम कह रहे हैं कि हम इतना हमारा रिवाइज एस्टिमेट होगा या बजट एस्टिमेट होगा, तो इसका मतलब कि हम लोग सीरियस हैं कि इतना हमें खर्च करना चाहिए और इसमें कोई कटौती करने का कोई कारण बनता नहीं, क्योंकि ये सब काफ़ी सोच समझ करके, और ये मैं कहूँगा कि ये क्वालिटी एक्सपेंडिचर है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर 5,54,000 करोड़ अगर खर्च कर रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 5,54,000 करोड़, एग्रीकल्चर में भी एक काफ़ी हमने एमएसपी किसानों को उचित उनके जो प्रोड्यूस है उनको उचित कीमत मिले, और इन सब के लिए जो हमने जो हायर एलोकेशन दिया है। उसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में अगले साल करीब 140% का इंक्रीज हेल्थ केयर में हमने डाला है। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों चीज़ों पे, एग्रीकल्चर के भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बल दिया गया। तो अब ये सब हमारे बजट में आया है, तो अब इसको तो कोई रिड्यूस करने का तो कुछ कारण बनता भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करना, अगर कम ही करना था तो फिर हम लाते ही क्यों। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है इसमें, और इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो इंक्रीज एक्सपेंडिंग है, और मैंने जैसे पहले कहा कि करीब 140% से ज़्यादा, और इसके कोरोना के वैक्सीन का कॉस्ट से लेकर के वैक्सीन का लॉजिस्टिक्स, मतलब डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड चेन, और फिर फाइनली जो जहाँ पर जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे उसके खर्च, इसके अलावा जो बाकी जितने जो खर्च हैं, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी रोल रहने वाला है, क्योंकि ये और प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिल करके ही हम लोग इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें दोनों को साथ में काम करना। देखिए कि जो आयुष्मान भारत जो है, एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक हेल्थ इंश्योरेंस ही है, जिसमें ये करीब देश के 50 करोड़ लोगों का, और पूरे देश में हर जगह तरह तरह के क्वालिटी ट्रीटमेंट्स, क्वालिटी हॉस्पिटल्स, इन सब जगह पे उनके ट्रीटमेंट का काफ़ी उनका उपाय किया गया। तो इस तरह के जो इंटरवेंशन है, उसी तरह से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का जो, और उस पर एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये सब भी सुविधा स्थापित की जा रही है। तो इसके अलावा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस का, और हमने एक जनरल एक पॉलिसी कि इंश्योरेंस सेक्टर में, अगर आपने देखा कि इंश्योरेंस सेक्टर में एक काफ़ी हम इसमें डेवलपमेंट हो, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए भी इस बार जो एफडीआई की जो लिमिट है वो 49% से लेकर के 74% तक कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों से भी देखें तो अगर एक एफिशिएंट इंश्योरेंस की व्यवस्था अगर आती है, उसमें अगर कंपटीशन होता है, तो उसका भी लाभ अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है, वो हेल्थ सेक्टर का हो या किसी और सेक्टर का हो, लेकिन उसमें भी अल्टीमेट बेनिफिशियरी कंज्यूमर होगा कि अगर कंपटीशन आए, अगर वर्ल्ड से अगर सब में इन्वेस्टमेंट आए, सिस्टम हमारा एफिशिएंट बने, तो इसका फ़ायदा भी एक हमारे जो आम नागरिक है या हमारा जो कंज्यूमर है उसको होगा। देखिए, जो टैक्स की जो व्यवस्था करते हैं, हमें अब उस मानसिकता से निकलने की कोशिश करनी चाहिए कि हर बजट के समय में हम अपने टैक्स रेट्स को टिंकर करते हैं, कभी हम बढ़ाते हैं, कभी हम घटाते हैं। एक टैक्स व्यवस्था में एक स्टेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट वो बहुत ही आवश्यक है। आपको याद होगा कि करीब 1.5 साल पहले हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमने कम किए। आज दुनिया में हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट न्यूनतम है, उसी तरह से पर्सनल इनकम टैक्स में काफ़ी हमने कमी की। अब इस तरह की व्यवस्था के लाने के बाद फिर से अगर 1-1.5 साल में अगर हम फिर से अगर टैक्स रेट में अगर टिंकर करें,
या बढ़ाएं, probably that would give a wrong signal. तो ये इतना वो उचित नहीं रहेगा। लेकिन काफी तो हमें व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि अगर टैक्स अगर ज्यादा अगर कलेक्शन करना है तो हमारी कलेक्शन इफिशिएंसी को बढ़ानी चाहिए, कंप्लायंस हमको रिड्यूस करना चाहिए और सिस्टम को कंप्लायंस की तरफ ले जाना चाहिए। तो टैक्स बढ़ाना, टैक्स रेवेन्यू हमें आना चाहिए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके बढ़ाने के लिए टैक्स के रेट को बढ़ाया जाए ये कोई जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि जीएसटी में पिछले 2-3 महीने में टैक्स काफी हमें अच्छा मिला। हमने क्या टैक्स बढ़ाया, क्या जीएसटी का टैक्स रेट बढ़ाया, क्या टैक्स रेट तो नहीं बढ़ाया, लेकिन फिर भी अगर जो पहले 95,000 से 1 लाख करोड़ मिलता था, अब 1,15,000 करोड़ और 1,20,000 करोड़ मिलने लगा बिना टैक्स बढ़ाए हुए। तो यही चीज दर्शाता है कि टैक्स बढ़ने के लिए टैक्स रेट का बढ़ना जरूरी नहीं है, हमें जो टैक्स की जो प्रणाली है उसमें सुधार की जरूरत है।